Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about the 8th class chapter, 4th chapter, the Bipin Chaudhary Lapse of Memory. So before we start this chapter, let's discuss what the things were highlighted by the writer in this chapter. In this chapter, he was discussing about the importance of memory and what happen if you find that you are forgetting a very important part of your life. So before we there is one introduction kind of thing which is there. Do you have a good memory? Has your memory ever played tricks on you? That means sometimes you feel that you forget something और आपको कुछ मतलब अब दिमाग कह रहा है कि आपको याद है लेकिन आपको लगता है कि आपको कुछ भी ऐसा याद नहीं है. So some kind of tricks were usually played. So forgetfulness often puts you on a tight spot. That the tight spot means in difficulties. Okay. So that sometimes if you forget something, you can be in your difficult portion. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. But if you find that you forget a very part around 10 to 1 2 hours and about 10 to 20 days, you forget, you completely don't aware about that, what kind of things will happen in that, what kind of things will happen with you for that hours or for that days. It makes you crazy. That means you got mentally disturbed by that. Okay. In the story also, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He was never been to Ranchi. He insists through there were many witnesses to be contrary and suspense all about. So the entire chapter was that the Bipin Babu said that he was not able to recall, वो उनको याद ही नहीं रहता that when he went in Ranchi, but some जो evidences हैं, जो witnesses हैं, वो सारे उनको बता रहे हैं कि आपने around 1 week और 10 days आपने रांची में spend किए हैं. But according to Bipin Babu, he said that I never been Ranchi ever. Okay, so the entire story was all about that. Clear? So in this chapter, once again I'm telling you, in this chapter, in this story, the writer showing the story of a person who forget the some days of his life, and which disturbed him a lot because though some evidence are saying that he was there, but according to him वो कभी वहाँ गया ही नहीं है, वो रांची कभी गया ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसको दिखाया जा रहा है, उसको एविडेंस मिल रहे हैं, उसको विटनेसेस मिल रहे हैं कि yes he was there in Ranchi. Clear? So let's start with the chapter. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's new market to buy books. So every Monday, this was the routine of Bipin Babu, that every Monday he after when he was returning from his work, he went to Kali Charan's shop to purchase books. So what kind of books he used to purchase? Crime stories, ghost stories, and thrills. Thrills means that means full of suspense and full of enthusiasm. क्लियर? बहुत ही रोमांचक काइंड ऑफ जो स्टोरीज होती हैं वो स्टोरीज वो पढ़ते थे. तो किस तरह की बुक्स, रूटीन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ कालीचरण? द कालीचरण रूटीन वाज देयर, सॉरी, विपिन बाबू's routine, that every Monday he stopped to Kalicharan's bookshop and he purchased five books at least for a week. And what kind of books he purchased? He purchased the books like crime story, ghost story, and full of thrills. He had to buy at least 5 at a time. Clear? So last him through the week. मतलब पूरे एक वीक को पूरा क्लियर करने के लिए what he did, he purchased 5 books once in a time. Clear? एक वीक में वो 5 बुक्स परचेज करता था, जिससे क्या होता था, ही कैन पास हिज एंटायर वीक. बिकॉज क्यों वो बुक्स के थ्रू अपना टाइम पास क्यों करता था? बिकॉज ही लिव्ड अलोन. ही वॉज नॉट, अब देखो क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विपिन बाबू वॉज, किस तरह के इंसान है विपिन बाबू. सो ही वॉज नॉट a good mixture. That means he was not easily mixed with some persons. He had very few friends.
and did not like spending time in idle talk. Ideal chat मतलब वो बेफालतू की बेतु की बातें करना उनको पसंद नहीं था. Very few friends he have. He was not having a mixture quality. मतलब he was not able to mix with any person very easily. Okay, so this is the small description of Vipin Babu. Today at Kalicharan's, Vipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. मतलब उसको जब वो शेल्फ में से बुक्स उठा रहा है, आप इमेजिन कीजिए that he was in a kind of library. Okay, and he was selecting the books from the shelf. वो शेल्फ में से बुक्स को सेलेक्ट करता है कि कौन सी बुक्स उसको खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक उसको रखनी चाहिए अपने पास. So what he was doing, he was just selecting the books, but suddenly उनको फील होता है that someone is observing. बहुत देर से कोई जो इंसान है उसको ऑब्जर्व कर रहा है. Okay, so he turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. अब उसको फिर जैसे ही वो मुड़ता है वो देखता है that a round-faced person है, meek looking मतलब a very full of expression जो उसका face है. तो वो कहता है कि वो अब उसकी वो जो देख रहा होता है वो इंसान उसको देखते ही जैसे विपिन बाबू उस इंसान की तरफ देखते हैं वो एक बड़ी सी स्माइल उसको दे देता है. सो एंड वो जो पर्सन है वो क्या बोलता है, आई सपोज दैट यू रिकोगनाइज मी. मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है. देन विपिन बाबू सेड दैट हैव वी मेट बिफोर. विपिन बाबू उनसे क्वेश्चन, क्योंकि विपिन बाबू ने उसको बिल्कुल पहचाना ही नहीं, बट द पर्सन इज सेइंग द हैविंग अ वेरी वाइड स्माइल वाइल ही वाज लुकिंग एट विपिन बाबू एंड ही सेड दैट आई थिंक दैट यू डोंट रिकॉग्नाइज मी. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. अब उसको बहुत ज़्यादा हैरान होता है. कहता है वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड अ कार टू टेक यू टू द होडो फॉल्स. तो वो कहता है कि मैंने आपको पूरा, आप मुझसे हर रोज़ एक हफ्ता कंटिन्यू मिले हैं एंड आई अरेंज अ कार फॉर यू टू गेट टू हार्डो फॉल्स. हार्डो फॉल इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, उसको बांध बोल सकते हो आप. हुडो एक उस पे बांध पे मैंने आपको भेजने के लिए कार अरेंज की थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या करते हो, आप कहीं इफ़ यू गो समवेयर टू ट्रेवल, ओके, सो इफ़ यू वांट टू सी द एलिमेंट्स, आप वहाँ के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जो व्यूएबल एलिमेंट्स है, इफ़ यू वांट टू सी दैट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल हायर car, or you will hire a taxi, or you will get to know the way how you can reach over there. So वो जो थर्ड पर्सन है वो यही विपिन बाबू को बोला that I arrange a car for you when you want to go to Howdo Falls. Clear? और वो क्या कहता है that I met with you every day for 1 week. So this is a very strange thing according to the, but Vipin Babu completely don't recognize him, and he was not having that memory that maybe he ever met with him. So then Vipin Babu पूछते हैं कि अच्छा कब मिले थे and who are you, प्लीज़ बता दो. ठीक है, तो वो so यहाँ पे he tell to him that in 1958 in Ranchi and my name is Parimal Ghosh. क्लियर? तो वो कहता है अच्छा, अब एक क्वेश्चन मार्क वाला जो रांची है वो कौन बोल रहा है, वो विपिन बाबू बोलते हैं रांची. नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट ही वॉज नॉट ही बट ही मैन वॉज मेकिंग अ मिस्टेक. अब वो उसको जैसे वो बताता ना कि हाँ मैं आपसे मिला था, मैं रांची में मिला था, 1958 में आप रांची आए थे एंड आई मेट विद यू देर. तो रांची, वो कहता है रांची, अच्छा. तो फिर उसको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स की. विपिन बाबू सेड दैट ओके, आप आई थिंक यू आर मिस्टेकिंग, आप गलती कर रहे हो. विपिन बाबू सेड आई हैड नेवर बीन टू रांची. मैं कभी रांची गया ही नहीं. ओके, ही हैड नेवर बीन टू, वो कहता है ही हैड बीन एट पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. वो कहते हैं येस आई थॉट टू गो देयर मैक्सिमम मैनी टाइम, आई थॉट टू गो देयर. मैं बहुत बार सोचता था कि मैं वहाँ जाऊँगा बट मैं कभी वहाँ जा नहीं पाया. ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम. तो अब विपिन बाबू उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं. कहते हैं कि अच्छा चलो, आप अगर मुझे जानते हो, आपको पता मैं कौन हूँ. Then the man raised his eyebrow in a very commenting way में उसको जैसे बात करता है. But so do you know, do I know you, who doesn't know you.
विपिन चौधरी। तो वो कहता है, जब विपिन चौधरी से कहता है कि डू यू नो हु आई एम, तो कहता है आपको आपको कौन नहीं जानता, आप तो विपिन चौधरी, एवरीवन नो अबाउट यू। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई नेवर बीन टू रांची। वो कहता एक बार नहीं, मैं तो कभी भी नहीं गया हूँ रांची, सो आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। नाउ द मैन लाफ्ड अलाउड, बहुत वो तेज से हंसने लग जाता है। वट यू आर सेइंग मिस चौधरी, who you had a fall of hodo and cut your right knees। अब देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, he start telling the incident over there। अब एक अभी तक तो उसने क्या बताया कि मैंने आपके लिए गाड़ी अरेंज की थी, अब वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताने लग जाता है कि उसके जो कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स वो उनको बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि when you went to hodo fall at that time you fell down, आप गिर गए थे नीचे, एंड आपकी राइट नी पे कट लग गया था, एंड आई गिव यू आयोडीन ओवर देयर, आई हैड फिक्स्ड कार अप टू यू टू नेदरहार्ट। वो कहता है आप नेदरहार्ट पे जाना चाहते थे, एंड नेदरहार्ट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस। तो वो कहता है यू वॉन्ट टू गो देर, तो एंड अगेन आई हायर अ कार फॉर यू। अब देखो यहाँ पे वो क्या करता है, जो परिमल घोष है, ही स्टार्ट टेलिंग द इंसिडेंट व्हाट हैपन इन द रांची, क्लियर। बट विपिन बाबू स्टिल सेइंग दैट आई कांट यू रिकॉल एनीथिंग, समवन एल्स नो यू। अब देखो यहाँ पे वो एविडेंस भी दे रहे, कहते सिर्फ मैं ही नहीं और भी कोई है जो आपको वहां पे जानता है। सो देन द एंड said that you had fall to hodo cut and okay, तो यहाँ पे again someone else you know who was also in the Ranchi at that time। वो कहते हैं in Ranchi one more person is there who know you, that was Mr. Dinesh Mukherjee। This was the third character, we have two characters till now। First is Vipin Babu, second is Parimal Ghosh, and third is Dinesh Mukherjee। You stayed in a bungalow। अब वो कहता है कि रांची में आप होटल में नहीं रुके थे, आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड दैट यू डोंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची, क्लियर। सो व्हाट ही डिड, so what he said that Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow and you said that I don't like hotel food, and because of that you want that you stayed in a bungalow and you want to cook your food by a bawarchi, clear। Okay, so Mr. Mukherjee stayed with you with his sister। तो वो कहते हैं आप तो उनके बंगलों में रहे थे और वो अपनी सिस्टर के साथ रहे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। अब वो देखो एक और इंसिडेंट बता रहा है कि यू ऑल्सो हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट विद हिम अबाउट मून लैंडिंग। मून पे जो लैंड करने के बारे में भी आपकी एक आर्ग्यूमेंट हुई थी मिस्टर दिनेश मुखर्जी और उनकी सिस्टर के साथ। ओके, रिमेंबर, वो कहते याद आया। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो परिमल घोष है वो बहुत सारी चीज़ें विपिन बाबू को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि उनको याद आ जाए कि मैं उसको, मतलब विपिन बाबू परिमल घोष को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो व्हाट ही वो और एक वो कुछ और बताता है। एक क्वेश्चन आएगा आपका, टू मेक him realize that he went to Ranchi, what kind of things या what kind of evidence परिमल घोष give to him। ओके, सो आपको वो सारे एक लिस्ट के अकॉर्डिंग राइट अप करने हैं। सो यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स, इन इट योर साइट सीइंग ट्रिप्स, ठीक है। जो साइट सीइंग जो ट्रिप्स है वहाँ पे, अच्छा देखो जैसे क्या होता है, जब भी आप किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो एक आपको बुकलेट मिलती है जिसमें आपको उस शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पेस होते हैं, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, उसकी लिस्ट होती है, क्लियर। तो वो कहता है कि आप हमेशा अपने बैग में वो बुक कैरी करते थे जिसमें साइट सीइंग के पूरा ट्रिप्स होते थे। एम आई राइट और नॉट। अब विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। अब विपिन बाबू जो है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं। बट ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। अब वो कहता है, अब देखो क्वेश्चन अगेन विपिन बाबू से क्वेश्चन बोलते हैं कि अच्छा विल यू प्लीज टेल मी विच मंथ आई वॉज देयर। सो ही सेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब विपिन बाबू कहते हैं, नो सर सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 98 विद माई फ्रेंड इन कानपुर। वो कहते उस टाइम पे दुर्गा पूजा हो रही थी अक्टूबर में, दिस वॉज द दुर्गा पूजा टाइम, एंड आई वॉज देयर इन कानपुर विद माई फ्रेंड, एंड यू आर मेकिंग
मिस्टेक। अब वो कहता है कि हाँ नहीं आप गलती कर रहे हो तो गुड डे। अब मतलब किसी तरह विपिन बाबू चाहते थे कि वो इंसान वहाँ से चला जाए और वो उनको इरिटेट नहीं करे। ओके, बट द मैन डिड नॉट गो, यानी हिज डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो जो मैन है वो कंटिन्यू बात करता ही रहा, उसने अपनी बातों को छोड़ा ही नहीं। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। क्लियर। वो एक और इंसिडेंट बताता है कि एक बार मैंने आपके साथ चाय पी थी आपके बालकनी में बैठ के, एंड यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू हैड नो चिल्ड्रन एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ एज वेल। तो यहाँ पे अब जो पर्सन है, वो जो परिमल घोष है, वो उसकी पर्सनल बातों को भी जानता है। वो कह रहा है कि आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है, दैट यू डोंट हैव चिल्ड्रन एंड यू हैव लॉस्ट योर you have lost your wife 10 years ago. ठीक है, he said that you have lost your wife 10 years ago and your only brother had died insane. मतलब आपका जो भाई है वो पागलपन में मर गए, पागलपन यानी कि किसी एक दिमागी बीमारी थी उसको, and he died. So he was all alone in the entire world. He doesn't have his family with him. Okay, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi, and because of this reason. अब देखो वो क्या कहता है कि आपके ब्रदर की डेथ हो गई थी उस दिमाग के कंडीशन के कारण, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपने जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको विजिट नहीं किया था, क्योंकि जो मेंटल हॉस्पिटल में जाने से व्हाट विल हैपन, आपको आपके भाई की याद आ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यू वॉन्ट गो देर। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. मतलब जब विपिन बाबू ने फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो अपनी बुक्स ली उन्होंने और वो काउंटर पर गए, एंड ही जस्ट पेड फॉर दिस, बट द मैन स्टिल लुकिंग एट हिम। जो मैन है वो फिर भी उसकी तरफ कंटिन्यू देखे ही जा रहा था, उसको डिसबिलीव था, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था दैट विपिन बाबू वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज हिम। क्लियर? So this is the portion we'll discuss in this video, and in our next video we'll discuss the rest of the part of this chapter. I hope आपको यहाँ तक का portion समझ में आ गया होगा. Clear? And I will send you some assignments and you have to write down the introduction of this chapter as well as the summary of this chapter, and for 2-3 questions I will send to you, and you have to write down all the questions in your fair notebook. Clear, guys? Thank you.